Yesterday we have done that sound need a medium for propagation, that is movement. Sound, it definitely need medium for the propagation. And we have also seen that sound travel more in solid than in liquid and then in gas. Why? In the solid, we have seen the molecules are compactly packed. In the solid, the molecules are very much compactly packed. In case of liquid, the molecules are somewhat far apart. In the gases, the molecules are more far apart. When one molecule vibrates, vibration is the movement on the particular position, that is back and forth movement. Okay? Around their mean position. When this will vibrate, if the molecules are very much compactly packed, it can transfer the vibration to the next molecule. The next molecule will transfer the vibration to the next molecule. As thus, the sound will travel more in case of solid. But if I am talking about the vibration of the individual molecule is more in the gaseous. Okay? But it will not be able to transfer the vibration if the molecules are very much far apart. The molecules are compactly packed. ठीक है? जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी कि आप रूम में बहुत आसपास बैठे हो, अगर एक को मैं हिलाऊंगी तो आप एक दूसरे को धक्का आराम से दे जाओगे. आप लाइन में खड़े होते हो, आपको कहा जाता है कि 1 आर्म डिस्टेंस लेके खड़े हो जाओ, क्योंकि एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होगी. यू कांट ट्रांसफर द वेव. मगर यही आपको बहुत पास पास खड़ा कर दिया जाए असेंबली में, एक धक्का देगा सारी लाइन गिरेगी. ठीक है? तो अगर जब मॉलिक्यूल्स कंपैक्टली पैक्ड हो जाएंगे तो यू कैन ट्रांसफर, है ना? हाँ, अब नहीं भूलेगा सच्चा. ठीक है? सो साउंड विल transfer more in the solid than liquid and gas because of the molecules are very much compactly packed. Now how this sound travels? Sound is a form of energy and it travel in the form of wave. कोई भी बेटे, चाहे लाइट है चाहे वो साउंड है, वो सब वेव की तरह ट्रेवल करती है. ठीक है? नॉट इन द स्ट्रेट लाइन. वेरी नाइस. कंटिन्यू. स्ट्रेट लाइन में जाती है. So write the speed of the wave of sound. What is the speed of the light? Write down. The speed of the light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Why we are writing this speed of the light, I will tell you. Speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Speed of the sound in air. Speed of sound in air 340 meter per second. Some of the book are writing 320. हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली. अब देखो 3 into 10 raised to the power 8 मीन्स 3 के साथ इतनी जीरोस हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की. दैट इज वाई सन से लाइट हमारे तक पहुंच रही है. अब जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें आवाज बाद में आती है, पहले बिजली कड़कती है. यही क्वेश्चन आता है कि आपको पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाई वी हियर साउंड बिफोर द, व्हाई वी see the lightning before the sound when there is thunder, because speed of light is more as compared to speed of the sound. Now how does this sound travel? It travel in the forms of waves. It travel in the form of waves. कोई भी बेटे लाइट रेडिएशन आ रही है जो हमें सन से भी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सन से एक तरह की लाइट नहीं आ रही है जो हम देख रहे हैं बेटे, दैट इज अ विजिबल लाइट, जिसके कारण हम देख रहे हैं.
मगर जो सन है वो हमें हर टाइप ऑफ लाइट दे रहा है, उसे ब्रॉडली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे कि आप माइक्रोवेव स्टडी करते हो, आप एक्सरे स्टडी करते हो, आप कॉस्मिक रेज की बात करते हो, आप यूवी रेज की बात करते हो, तो बहुत ज्यादा रेडिएशन है। जैसे हम माइक्रोवेव तभी चल रहे हैं, हमारे रेडियोस तभी चल रहे हैं क्योंकि उससे रेडियो वेव्स भी आ रही है। अब ये सब कुछ वेव की तरह ट्रेवल करता है। तो वेव में आप एक ये देखते हो, हाइट देखते हो, एक डेप्थ देखते हो, हर वेव में ये होता है। इन द सेम वे साउंड वेव में भी एक हाइट है और एक डेप्थ है। सीधी लाइन में नहीं प्रोपोगेट करती, ऐसे ऐसे करके प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो हम जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ते हैं उसमें एक तो वेव का क्या पढ़ोगे, एम्पलीट्यूड। वेव का क्या होता है बेटे, एम्पलीट्यूड। वेव का you will do, one is time period, one is frequency. You will study about these three terms. One is amplitude, one is time period, and one is frequency. See, to understand these things, we should know about pendulum first. Okay? Then you will be aware about what is frequency, what is time period, what is amplitude. अगर वैसे इस वेव के हिसाब से आपको समझाया जाए, इस वेव को ध्यान से देखो बेटे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आप लिखोगे नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड। ये वेव जा रही है, ये होती है क्रस्ट जो ऊपर जा रही है, दैट इज क्रस्ट। ठीक है, ये हाइट और ये डेप्थ है ट्रफ की। ठीक, जितनी क्रस्ट की हाइट ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। समझो इस बात को। मेरे पास एक थ्रेड है, फ्रीक्वेंसी होती है बेटे से स्पीड। ठीक है, स्पीड। ध्यान से समझो इस बात को, आराम से समझ आएगी। फिर हम पेंडुलम की एग्जांपल लेके करेंगे जो आपकी 8th स्टैंडर्ड में आती है। अदरवाइज इस चीज को आप ध्यान से समझोगे, यू विल गेट इट। ठीक है, वेव ऐसे जानी है। मान लो आपके पास 1 किलोमीटर की थ्रेड है, दैट इज अ वेव। थ्रेड सीधी नहीं जा रही, थ्रेड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अगर थ्रेड को आप ज्यादा मूव करोगे, बहुत फास्ट मूव करोगे, तो ये ऊपर नीचे कम जाएगी, ये ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे 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 करेगी। ठीक है, तब ये हाइट होगी और ये डेप्थ होगी, कम होगी। अब मुझे कुछ बताओ, जब कोई चीज फास्ट चलेगी, उसके पास टाइम नहीं है। आप ये सक्शन जा रहा है, सक्शन पहले उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर प्रिंसिपल मैम के रूम में जल्दी जाएगा कि सक्षम उठा और ऐसे ऐसे करके प्रिंसिपल मैम के रूम में चला गया, जल्दी पहुंच जाएगा ना। ठीक है, तो जितना वो ऐसे ऐसे करके जाएगा वो फटाफट से पहुंच जाएगा, क्योंकि वेव है। वेव ने सीधा तो जाना नहीं, पहली बात, सीधी की बात हम नहीं कर सकते अब। नहीं तो अगर हम ये बोलेंगे वो सीधा जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। हमने साउंड ने एज ए वेव जाना है। वेव की हमेशा क्रस्ट भी होती है, हाइट भी होती है, ट्रफ भी होती है, पहली ये बात समझो। ठीक है, सीधी की हम बात कभी नहीं करेंगे। अब जब क्रस्ट मतलब ऊंचाई कम हो और डेप्थ भी कम हो तो फास्ट जाएगी। जो चीज फास्ट जा रही है वो ऐसे ऐसे करके जाएगी फटाफट से। जो चीज स्लो जा रही है वो पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी वेव की, और क्या बढ़ेगा, डेप्थ भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब हाइट और डेप्थ बढ़ेगा इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाइट और डेप्थ को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। जितनी हाइट ज्यादा होगी वेव की उतना उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जो जितनी हाइट होती है बेटे उतनी ही डेप्थ होगी। जितना कोई वो वेव इस तरह मूव करिए, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम अ वेव, आई एम अ वेव। अगर मैं जितना उस तरफ गई हूँ उतना ही इधर डेप्थ में जाऊंगी, तो जितनी हाइट होगी उतनी ही डेप्थ भी होगी, जितनी क्रस्ट होगी उतनी ट्रफ भी होगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। वहां तक पहुंचना है, उस दीवार तक मैंने पहुंचना है। अगर मैं ऐसे ऐसे ही करती रही तो दीवार तक स्लोली पहुंचूंगी।
ठीक है, मींस एम्पलीट्यूड बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। अब अगर ऐसे ऐसे करके सीधे ही चले जाएं, जैसे स्नेक जाता है, जल्दी पहुंचेंगे। तो अब हाइट और डेप्थ क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, जितनी हाइट और डेप्थ मीन जितनी क्रस्ट और ट्रफ छोटी हो जाएगी, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितनी हाइट और डेप्थ ज्यादा हो जाती है, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एट ए टाइम एक पॉइंट से कितनी वेव जा सकती हैं, तो उसका मतलब कम वेव जाएंगी। अगर फास्ट जाएंगी, ये तो मैंने एक वेव की एग्जांपल दी, मैं बोल रही हूँ एक वेव तो नहीं आ रही बाहर, बहुत सारी वेव आ रही हैं। अगर मैं स्पीड से बोलूंगी तो ये ऐसे ऐसे जाएंगी बहुत ज्यादा, मींस एक सेकंड में एक पॉइंट से बहुत ज्यादा वेव गुजरेंगी, तब मैं बोलूंगी उस चीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। मगर अगर हम क्रस्ट और ट्रफ बढ़ा देंगे तो उसी एक सेकंड में उस पॉइंट से कम वेव गुजरेंगी, तो क्या बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फॉर द पॉइंट, तो इसी को हम बॉब के साथ और पेंडुलम के साथ एक्सप्लेन करते हैं आपके स्टैंड को। मगर इस चीज को इस तरह से समझो कि ये वेव्स की तरह ट्रेवल करती हैं। जितनी वेव्स की हाइट और डेप्थ कम होगी, उतना वो फास्ट ट्रेवल करती है, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पॉइंट से गुजरने के लिए। अब मान लो मैंने वहां तक जाना है और मेरे 10 क्लोन्स हैं, ओके, 10 वेव्स। तो जब अगर ऐसे ऐसे मैं जाऊंगी तो इसी एक सेकंड में बहुत बाजी गुजर जाऊंगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अगर यही बारी बारी उधर जाके इधर जाके इधर जाके करते रहे तो फिर वहां तक तो हम लेट पहुंचेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड चाहे बढ़ जाएगा। गॉट द पॉइंट? नाउ अंडरस्टैंड विद द पेंडुलम। नाउ राइट, व्हाट इज पेंडुलम? कल मैं आपको पेंडुलम ऑन थर्सडे आई विल शो यू। I thought that will not do in this topic. This is a simple pendulum. ठीक है, आपने घर पे कईयों के तो क्लॉक लगी होगी जिसमें पेंडुलम होगा। So बेटे, this is metallic ball. This is known as bob. This is known as bob, which is a metallic ball. Now this metallic ball, you can see there is a long thread. This is a long thread. Saksham, you know everything, है ना? Saksham know what we are doing. ठीक है? And it is supported by a rigid surface, and this is known as point of जहां पे सस्पेंडेड होती है. So this is a point of it should have a what is the time? 8 time. Let me get a pendulum form. Just see, this is a pendulum. Okay, so this is a metallic bob and this is a thread.
and this is a point of suspend. ठीक है? So if I will move this bob here, ठीक, so this will be one extreme position. ठीक है? ये वाली एक कल तो आपका टेस्ट है बेटे, डे आफ्टर टुमारो आई विल शो यू दिस पेंडुलम, जस्ट इसको पेंडुलम इमेजिन करो अभी, ठीक है? ठीक है, अब दिस इज अ बॉब, आई एम होल्डिंग इट विद, तो बॉब को मैं इस तरफ लेगी, तो ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है? ये मीन है, दिस इज अ मीन, जहां पे पेंडुलम है इस टाइम, जहां पे पेंडुलम है दैट इज अ मीन पोजीशन, दिस इज अ मीन पोजीशन। ठीक है, दिस इज अ मीन पोजीशन। नाउ आई हैव होल्डेड दिस मेटालिक बॉल और अ बॉब, अब इसको इस तरफ ले गए एक्सट्रीम, दिस इज वन एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस तरफ जाएगा अपने आप, तो मेरा हाथ आ गया, तो देखो इस तरफ गया, ये ऐसे ऐसे, अगर बॉब हैवी हो तो इट विल मूव हियर, देन इट विल मूव देयर, तो ये वाला वन एक्सट्रीम, and now it will move here to here, this is other extreme. ठीक है, this is one extreme, this is, so how you will make, so this is A position, when we move towards A to B, this is one extreme position. And this is other extreme position. Now, this was our mean position. When this bob is moving from one extreme position, then to the other extreme position, this is known as one oscillation. क्या कहते हैं इसको? One oscillation. Write down. Write down the motion of the bob of the pendulum. From one extreme position to another extreme position. नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं is called one oscillation. One oscillation. OSCILLATION. इसमें है ही नहीं। Now let us do the, what is amplitude? Now write down what is amplitude. देखो अब ध्यान से, मैंने आपको वेव से एम्पलीट्यूड सिखाया, मैंने सिखाया वेव से एम्पलीट्यूड। वेव से एम्पलीट्यूड में हमने क्या देखा? ये मैं खड़ी थी, अगर मैं बहुत दूर चलेगी और यहाँ से बहुत दूर चलेगी तो ये क्या था? एम्पलीट्यूड ज्यादा था। तो अगर इसकी वेव से हम एम्पलीट्यूड सीखें तो जितनी आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाओगे, ये मैं खड़ी थी, ये मेरी मीन पोजीशन थी, अगर मैं उस तरफ गई तो एक एक्सट्रीम पोजीशन है,
अगर मैं इस तरफ गई तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, यही है ना। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मीन जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, हम एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे कि मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे मेटालिक बॉब की। ये डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी मीन पोजीशन है, I am displaced toward that, then I am displaced toward that extreme position. So what is amplitude? The maximum displacement कितनी हो सकती है? हाँ, तो you can write the maximum displacement of the bob. The maximum displacement किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑफ द बॉब, कहां से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. Write down the maximum displacement of bob, where you will get poor marks. Now don't blame a teacher. The maximum displacement of the bob from its mean position. अगर वेव के हिसाब से सिखा बोलोगे तो कैसे बोलोगे? It is height, it is the it is equal to the height or depth of the wave, that is crust or trough of the wave. ठीक है, अगर वेव के हिसाब से बोलोगे. अगर इसके पेंडुलम के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे? इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. कम हो जाएगी. जितनी डिस्प्लेसमेंट आप ज्यादा करोगे उतना वो धीरे धीरे हिलेगा. मान लो कि मैंने यहां तक डिस्प्लेसमेंट करी, अब 1 सेकंड में ये इतनी बारी ऐसे ऐसे कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट यहां तक कर दी, अब 1 सेकंड में तो इतनी तक जाने के लिए बहुत टाइम लगाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. समझ आई? जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मीन पोजीशन से उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. नहीं, वो मैं आपको बात सिखाऊंगी. वो लाउडनेस और पिच और चीज है, ठीक है, वो अलग करेंगे. ठीक. नाउ राइट डाउन व्हाट इज नाउ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, अब देखो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक टाइम में 1 सेकंड में मैं वहां यहां से वहां पे कितना जाती हूँ, मेरे कितने क्लोन्स वहां से वहां जाते हैं. तो हमने एक ऑसिलेशन की बात करी कि यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए. अब जितनी बारी ऐसे ऐसे करेगा वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड and unit of frequency is hertz. Unit of frequency is hertz. Okay, now come at a time period. Ma'am, frequency का unit क्या है? Hertz, hertz. I have written on the board. Now next is time period. One oscillation. Time taken to complete one oscillation. देखो बेटे, ये मैंने खींचा, यहाँ पे एक्सट्रीम पे गई, फिर अदर एक्सट्रीम पे गई. ठीक है, तो ये क्या हुई? 1 ऑसिलेशन. जितना टाइम कोई भी पेंडुलम टेक करेगा टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. अगर जितनी आप मतलब जितनी हमने ये सीखा बेटे, जितनी हम डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड कम कर देंगे, उतना टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा.
क्योंकि उतनी ऑसिलेशन बढ़ जाएंगी, उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी एम्पलीट्यूड का इन्वर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि जितनी आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो, मतलब यहाँ लेके जाते हो, तो वो ऑसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना आप एम्पलीट्यूड कम कर देते हो, उतना टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज टाइम टेकन बाय द bob of the pendulum. It is time taken by the bob of the pendulum to complete one oscillation. Time taken by the bob of the pendulum to complete one oscillation. तेरा की बन what is oscillation? Who will repeat what is oscillation? ठीक है, the motion of the bob from one extreme position to another extreme position is known as oscillation. Now next is what is pitch and what is loudness. पिच होती है शीलनेस, तीखापन। कईयों की आवाज बहुत तीखी होती है और कईयों की आवाज बहुत तीखी नहीं होती है ना। तो जितनी तीखी है ना, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर जितने ज्यादा आप तीर मारोगे एट ए टाइम, एरो डालोगे, वो ज्यादा लगेंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जितने तीर एक एक करके आएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो तीखा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन जितनी तीखी आवाज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा। एट ए टाइम कितने तीर चले? हाँ।